محمد جاوید ہوں، ایز نیوز اور پھر ایک مرتبہ ہمارے شمشاد قادری صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ جمعے کے دن خاص اتوار کے روز منصف اخبار میں اب پرسوں کا 11 جون کا شمارے کے اندر منصف میں ڈاکٹر شجاعت علی صوفی صاحب کا جو ہے کالم آیا ہے، بڑا بہترین کالم ہے۔ خاص طور پہ جو ہے میں 3 وقت وہ کالم کو پڑھا ہوں، اور ہر ایک آدمی بھی ناظرین بھی جو ہے اس کالم کو پڑھیے، جس سے ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ہندو مسلم اتحاد کا ایک ایسی عکاسی کی گئی ہے ہندوستان کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک جگہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کا میں جواب لوں گا۔ لکھتے ہیں ڈاکٹر صوفی شجاعت علی صوفی صاحب، کسی صوفی نے کہا تھا کہ ہندوستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور مرلی کی بین سے محبت کرنے والوں کا مسکن ہے، جس کو پیار ہے بس وہی سنسار ہے، جس سے پیار ہے بس وہی سنسار ہے۔ سیاسی طور پر آگے لکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر مساوات کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن جب حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو مساوات کا جو لفظ ہے وہ خواب کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ جس طریقے سے صوفی صاحب نے کہا کہ آپ کے ہمارے نبی کریم محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین اور مرلی کی بین سے محبت کرنے والوں کا مسکن ہندوستان ہے، یہ واقعی بڑا ہی ایک جامع جو ہے الفاظ میں انہوں نے ہندوستان کی تہذیب کو جو ہے بیان کر دیا ہے۔ تو مگر ہو یہ رہا ہے جاوید صاحب کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد سے بھی رہنا چاہتے ہیں، خلوص محبت سے بھی رہنا چاہتے ہیں، مگر چند فرقہ پرست طاقتیں آج جس طریقے سے سر ابھار رہی ہیں، جس طریقے سے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اب تمام سیاسی اور تمام جمہوریت صاحب کو ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہو کہ منہ پہ تماچا لگانا۔ اب آپ دیکھیے جس طریقے سے پیار محبت قائم ہے، بالکل ہے، مگر سیاسی بات جب آ جاتی ہے تو اس بات کے اوپر آپ کو ہم کو غور کرنا ضروری ہے۔ حالیہ کرناٹک کے اندر شمشاد قادری صاحب، وہ ایک وزیر ہے بیچارے، وہاں پہ آ کے بولے چھری کو تیز کرو، اتنی نفرت کی بات ہے، میں آپ کو بولنا نہیں چاہتا، سب لوگ جانتے کہ انہوں آ کے وہاں پہ کیا بولے الیکشن سے پہلے، سمجھے آپ، اور الیکشن کے دوران میں جو ہے کون سے نعرے لگائے، تفرقہ ڈالے، مگر سب ناکام ثابت ہوئے الحمدللہ۔ اب عوامی جو ہے نا اس کا جواب دینا چاہیے۔ ناکام اس لیے ہوئے جناب علی کہ یہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی وہاں طبقات کے لوگ تھے، انہوں نے ایک بڑی ہی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا، اور متحدہ طور پہ مظاہرہ کرتے ہوئے ان فرقہ پرستوں کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جمہوریت قائم ہے، اور قائم بھی رہے، محبت بھی قائم رہے گی، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ ملتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، یہ ہم کو اس بات کا یقین ہے۔ سب شجاعت بھائی یہاں پہ ایک جگہ لکھتے ہیں اینٹیں بکھری ہوئی ہو تو ملبے کا ڈھیر ہے، اینٹیں بکھری ہوئی ہے تو ملبے کا ڈھیر ہے، مگر یہی اینٹیں باہم جڑ کر عمارت بن جاتی ہے تو وہ طاقت کے ایک مضبوط قلعے میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس میں قومیں پناہ لیتی ہے۔ کیا بات ہے صاحب، اس سے بڑا قومیں پناہ لیتی ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کا پورا مطلب یہ جو انہوں نے جو بیان کیا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان مذہبی رواداری کا، ہندو مسلم اتحاد کا ایک گہوارہ تھا، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹوں کے جب تک اینٹیں بکھرے رہیں گی اس کا کوئی فائدہ ملبے کے شکل اختیار رہے گی، جب وہ اینٹیں ایک جگہ جمع ہو کے عمارت جب تیار ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم آج جس طرح سے تفرقہ پیدا کرتے ہوئے جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط عمارت کی شکل میں، ایک مضبوط جو ہے قوم کی شکل میں ہم کو ابھرنا ضروری ہے، تاکہ جو ہندوستان کی فضا کو جو ہے نفرت کے ماحول میں جو بدلنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون اگر تمام لوگ پڑھیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ میں مسٹر شجاعت علی صوفی صاحب سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو مضمون ہے، میری ایک آپ سے تجویز ہے، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تیلگو اخبارات میں بھی دیجیے، انگلش اخبارات میں بھی دیجیے، تاکہ تمام اقوام جو مل جل کے جو رہتے ہیں ان کو بھی یہ پیام پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ پیام جو ہے ایک قوم پرست شخص کا پیام ہے، یہ کسی جو ہے غیر کا پیام نہیں۔ اگر یہ پیام
हिंदू भाइयों तक, सिख भाइयों तक, ईसाई, जितने भी उन तक अगर पहुंचेगा, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, जितने भी अखबार हैं, अगर ये पैगाम आकर आप देंगे, मेरी अगर तजवीज़ कबूल करेंगे, ये तजवीज़ है, आप कबूल करना नहीं करना, शुजात अली सूफी साहब की साहब आगे जो है डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब लिखते हैं, मुल्क के हिंदू भाई एक मुस्लिम सूफी संत को इस कदर अटूट मोहब्बत के साथ पूछते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि कई मजहबी रहनुमा इनके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन वो हिंदू अकीदतमंदों ने अपनी अकीदत में और अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं लाई। इसी तरह ये देखो मिसाल क्या देते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी शादी ब्याह में ऐसे कई रसूमात को अपना चुके हैं जिससे उन्हें अलहदा करना किसी भी आलिम या मजहबी रहनुमा की बस की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम दुल्हनों को सुर्ख लिबास में विदा करना, मंगलसूत्र यानी लच्छा पहनाना, मेहंदी या हल्दी का रस्म यानी मांझा जैसी तकरीबात मुस्लिम समाज का हिस्सा बन गई है, जो गैर मामूली सेकुलर रस्मों की तारीफ में आती है। बिल्कुल, यानी इतनी मोहब्बत का एक मिसाल दे रहे उनके कई एक मुसलमानों के जो तकारीब है उसके अंदर वो भी कोई रस्म रिवाज अपना लिए मोहब्बत से। नहीं, ये साचक है, मेहंदी है, अब ये जो मांझा है, और ये जो ये भी जिक्र करें कि दुल्हन को जो लाल लिबास पहना जाता है। तो देखिए जावेद साहब, ये जो सुनहरे अल्फाज में जो उन्होंने अपने अल्फाज जो बेहतरीन अल्फाज जो है उन्होंने अपना जो है ये जो चीज़ जाहिर की है, काबिल जो है सताइश है, काबिल तहसीन है। और ये जो बातें जो कही गई हैं, यानी हिंदू भाई मुसलमान तहजीब को अपनाते हैं और जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है मुसलमान उसके तहजीब के साथ अपने आप को जोड़ते हुए एक कौम दायरे में शामिल होते हैं, हम बहाम करते हुए इस बात का सबूत देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, यहीं हमारे आबा अजदाद पैदा हुए, यहीं पे हमको मरना है और यहीं पर इस बात का हमको सबूत देना है कि हम हिंदुस्तान की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार हैं और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दामे दिरमे सिखने हम अपनी कुर्बानी जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ जावेद साहब, अगर आप देखेंगे दिल्ली के जो है वो जो क्या है आपका इंडिया गेट जहाँ पर है, अब अगर आप वहां पर देखेंगे जो लोगों ने अपने आप को आज़ादी में शहीद किया है, 75% मुसलमानों के नाम है वहां पर। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज जाके देख लीजिए, तारीख गवाह है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जिस तरीके से आपके हमारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और मुरली की बीन से मोहब्बत करने का जो मस्कन का जो उन्होंने हवाला दिया है, यकीनन ये है हिंदुस्तान में आज भी। ये चंद फिरका परस्त लोग जो है जिस तरीके से नफरत पैदाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं खुसूसी तौर पर यहाँ एक बयान करना चाहूँगा, शायद हो सकता है कि किसी को इख्तलाफ हो, मगर नौजवान कायद राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा की, उससे मुबासिल ये बयान है। उन्होंने जो किया, नफरत को खत्म करते हैं, मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोली है, वाकई ये काबिल तारीफ और नौजवान का हम समझते हैं कि अल्लाह उसका जरूर साथ देगा। और नफरत की इन नफरतों को खत्म करने के लिए, उन मोहब्बतों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नौजवान कायदीन और सूफी साहब जैसे लोगों की जो है हमको सताइश करना है, उनकी हिम्मत अफजाई करना बहुत जरूरी है। सच माने तो एक बात बोलूँ साहब, जिस टाइम मैं ये सूफी साहब का जो है ये कालम पढ़ा ये इतवार का, उस टाइम मेरे जहन में यही बात है कि ये राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी अगर ये सब चीज़ें अगर वो बयान में अपने बोल दिए तो वो भी एक मिसालात जो दिए हैं, वो एक आम चीज़ बोले हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये तो पूरा शोरूम है पूरा है। और ये क्या है, ये मोहब्बत का पूरा ये एक सारे एक कूजे में जमा कर दे, सारी चीज़ों को लाके जमा कर दिया। और काबिल तहसीन है, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी जो तजवीज़ है वो यकीनन करेंगे। और एक मरतबा मैं सूफी साहब से कहूँगा कि इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी अखबारात में भी इस तरीके के आपका जो तुझे सज्जे से मतलब है जहाँ चाहे वहाँ गिर जा, मतलब ये है कि सज्जे से, मगर कहाँ गिरना है ये हमको सोचना है कि जो हिंदुस्तान की सालिमत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान के अमन को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आज हमको आपको तमाम को ऐसे मज़ामीन का मुतालबा करते हुए ऐसे पैगामात को उन्होंने जो पैगाम दिया है, जावेद साहब, ये जावेद साहब की ASJ न्यूज़ की भी जिम्मेदारी है, मुझ जैसे जहदकार की भी जिम्मेदारी है, और जितने अवाम ये हमारी बात सुन रहे हैं उनसे भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि ये मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए, ताकि जो नफरत की फिजा जो फैलाई जा रही है
उसका खात्मा हो सके और इन चंद फिरका परस्त मुट्ठी पर अनासर के मुंह पे एक जोरदार तमाचा देते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक जो है सबूत देने की हम कोशिश करें। साहब और एक तजवीज़ मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, क्या आप शुजात भाई को आप अपने अभी देख रहे हैं, शुजात भाई मुमकिन आपकी वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने होंगे कि जिस किस्म से ये अपना जो है कलम को ऊपर का जो है ना लिखे हैं, कलम का इस्तेमाल किए हैं। मैं ये समझता हूँ कोई टीवी चैनल्स को सोशल मीडिया का ज़माना है, वो खुद भी अगर आके इस प्याम को अगर आ गए हैं तो ज़रा वो इंग्लिश तेलुगु उर्दू में बड़ा बेहतर, आप ज़रा बड़ी बेहतर तजवीज़ है। मैं शुजात सूफी साहब से एक समाजी जहदकार होने के नाते एक कौम को जो है, हिंदुस्तानी कौम को जो है कौमी धारे में शामिल होने के नाते मैं शुजात अली सूफी साहब से कहूँगा कि हमारी आपके तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, कबूल करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो आपके बयानात हैं सोशल मीडिया पे भी अगर आके आप अपने बयान देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पेपर में लिखने से ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए आपका पैगाम आम होगा। और हिंदुस्तानी तहजीब को जो है जिस तरीके से हमको इस्तेमाल करना था, हिंदुस्तानी तहजीब में जिस तरीके की नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये काबिल कदर कारनामा होगा। हम शुजात अली सूफी साहब से चाहेंगे कि आइए सोशल मीडिया पे, अगर आप जहाँ चाहते हैं आते हैं और आपके जो इंटरव्यू लेते हुए हम सोशल मीडिया पे इसको यहाँ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसको हम वायरल करने की आपके सामने हम बात कहेंगे। बहरहाल आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश है कि मैं आपको बताता हूँ कि सूफी साहब का मज़मून जो इतवार 11 जून के दिन शाये हुआ था, ये मेरे हाथों में मुंसिफ का शुमारा है, ये इतवार के रोज़ का। इसके अंदर आप ये ख़रीद कर या देख कर या किसी के पास अगर है तो ये यकीनन पढ़िए और ये पैगाम को, शुजात साहब के पैगाम को आगे तक बढ़ाइए। आजकल हिंदुस्तान को बेहद ज़रूरत है, हिंदुस्तानियों को बेहद ज़रूरत है। मुट्ठी भर लोग जो है ना इस वक्त हिंदुस्तान के शहराजे को बिखरने के लिए कई एक नित नए अंदाज के अंदर जो है ना तफरक़ा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नाकाम भी होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो पैगाम है शुजात अली सूफी साहब का, ये पैगाम को आप भी आगे बढ़ाइए। हम भी एक छोटे से चैनल हमारा है, इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपको प्यार और मोहब्बत का पैगाम यहाँ से आपको जारी किया जाए, दिया जाए। इस सिलसिले में हम शमशाद कादरी साहब को खास तौर पर मदऊ करते हैं, इस वास्ते कि ये अयम्मा के जो है बहुत बड़े जहदकार है, उसके कौमी सदर भी है, तो वो भी अपनी बात रखते हैं और ख़ास तौर पर वो भी बहुत शुजात अली सूफी साहब के जो कालम रहते हैं उससे बेहद मुतासर रहते हैं। फिर एक मरतबा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको जो है ना शेयर भी कीजिए ये वीडियो को, ताकि ये पैगाम हो सके। और ख़ास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि जैसा कि शमशाद कादरी साहब ने एक तजवीज़ रखी है डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब से कि आपका जो पैगाम है ये तो इसको कलमबंद किए हैं, लेकिन फिजिकली जो है ना आप आवाम के सामने सोशल मीडिया के जरिए भी आवाम तक अपने पैगाम को पहुंचाते, जिससे बहुत बड़ा इस्तेफादा हासिल करते हैं। ना सिर्फ तालीम याफ्ता लोग बल्कि जो गैर तालीम याफ्ता या कम तालीम याफ्ता लोग हैं वो लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब बहुत बहुत शुक्रिया।